Hello friends, so I welcome you all in this video lecture series and today I will discuss about four problems from the linear algebra, and these four problems are basically from the topic that is linear transformation, and particularly I will discuss about a part C question. So all these four problems are from the part C. So the first question which has been asked in December 2018 in part C, right? The second problem is taken from June 2016 from part C. All these type problems are from the same topic, but they have seen it include more than one topic, right? So now the third question and fourth question which I have taken, the third problem which is from June 2018 and the fourth problem which has been asked in November 2020. So all these questions are from part C, and I will try to give you some hint from the last these two questions so that you can solve these independently, right? First I will tell you the question number 1 and 2, and these questions are basically the similar type of question that has been asked in 2018 and 16. So first we just see the first question which is from the linear transformation. So first we read the question carefully. What is the question? Question is P3 be the vector space of polynomial with real coefficient, right? P3 be the polynomial, right, with real coefficient of degree at most 3. क्या हो सकता है? एट मोस्ट 3, अधिक से अधिक क्या हो सकती है? इसकी डिग्री 3 हो सकती है. सो बेसिकली दिस P3 इज ए पॉलिनोमियल विच डिग्री इज एट मोस्ट 3, मीन्स मैक्सिमम इसकी डिग्री क्या हो सकती है? 3 हो सकती है. नाउ कंसीडर द लीनियर मैप विच इज फ्रॉम T फ्रॉम P3 to P3. This first you write the statement carefully. What is the question? So it is from P3 to P3, right? Now it is defined by this transformation or this map which is defined from this polynomial to Px plus 1, right, and plus Px minus 1. So this is the transformation which is given Tpx, which is sum of Px plus 1 plus Px minus 1. Now the question is, which of the following property does the matrix of T with respect to the standard basis of P3 satisfy? Now the question is very simple. They have just asked you have to tell about the matrix of T. अच्छा देखिए, मैट्रिक्स ऑफ टी कैसे बनता है ट्रांसफॉर्मेशन का. फर्स्ट यू जस्ट ट्रांसफॉर्म द स्टैंडर्ड बेसिस, यहां दिया भी हुआ है. स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में क्या करने हैं? फर्स्ट वी जस्ट ट्रांसफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू देयर स्टैंडर्ड बेसिस, मेक ए मैट्रिक्स. आपको पता है वो मैट्रिक्स कैसे बनाई जाती है. नाउ दे सेटिस्फाई दिस वेदर द फॉर्म्ड मैट्रिक्स इज डिटर्मिनेंट 0 और इफ वी just subtract 2i and then 4 power it will be 0. कह रहा but t minus 2i raised to the power 3 is non-zero. Now the third option is t minus 2i cube is equal to 0 but t minus 2i square is not 0. And the fourth option is 2 is an eigenvalue with multiplicity 4. 2 is eigenvalues का मतलब आप समझ चुके हैं. मल्टीप्लिसिटी 4 मीन्स 4 टाइम्स आया है. एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी की बेसिकली बात कर रहा है, राइट? सो नाउ your basic, again I repeat, your basic concept related to this topic must be cleared. Only then you can solve these type of problem. Otherwise कोई भी नया प्रॉब्लम आएगा तुरंत आप फंस जाएंगे. So first you clear your basic concept how the linear transformation work and how we can construct the मैट्रिक्स. सो देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल है. आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन दिया है एंड बेसिस भी ऑलरेडी दिया हुआ है. तो हम बेसिस 1x x square and x cube, this is the basis for what? P3. क्योंकि आपको पता है दोनों कहां से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, P3 to P3. So first we just transform the first basic which is basically
पी एक्स पहला पॉलिनोमियल हमने सपोज कर लिया, बेसिस का पहला एलिमेंट 1, राइट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x रेज टू द पावर नॉट, राइट। सो पहले इसको ट्रांसफॉर्म करिए एंड देन यू राइट इन ए मैट्रिक्स फॉर्म। सो वंस यू ट्रांसफॉर्म दिस मीन्स 1। अच्छा देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा क्या, आपने px की जगह क्या लिया है, इन प्लेस ऑफ px यू हैव टेकन 1। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इफ यू ट्रांसफॉर्म दिस, यहां पे कह रहा है px प्लस 1, तो देखिए अगर px कांस्टेंट है तो px प्लस 1 भी क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा 1। और चाहे जो भी नंबर लेंगे px माइनस 1 विच इज ऑल्सो 1, बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन px इज 1 कांस्टेंट फंक्शन, राइट। तो कोई भी पॉलिनोमियल लेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल 1 है तो कुछ सबकी वैल्यू क्या आएगी 1। सो नाउ यू पुट इन इक्वेशन नंबर 1, t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी px प्लस 1, यही तो दिया है, px प्लस 1 की वैल्यू क्या है 1 प्लस px माइनस 1 विच इज ऑल्सो 1। सो फाइनली यू विल गेट व्हाट 2। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, नाउ दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज फ्रॉम p2 to p3। सो जो नया एलिमेंट बना दिस 2, इट इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देयर बेसिस। और आपको पता है बेसिस सेट क्या है, 1x x स्क्वायर x क्यूब, राइट। सो 2 को कैसे लिख सकते हैं आप, 2 into 1 लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देयर बेसिस। सो 0 into x प्लस 0 into x स्क्वायर एंड प्लस 0 into x क्यूब, राइट। सो दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देयर बेसिस। अब देखिए हमें निकालना क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए आपको बताया जा चुका है कि कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और कैसे उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, तो चलिए वो भी आगे करेंगे। नाउ वी ट्रांसफॉर्म द सेकेंड बेसिस, और सेकेंड बेसिस का जो एलिमेंट लेना है px, वी जस्ट टेक एज x, क्योंकि देखो फर्स्ट हम ले चुके हैं सेकेंड x, सो x को भी ट्रांसफॉर्म करना है। सो फर्स्ट यू कैलकुलेट दिस वैल्यू, px प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंस px इज इक्वल टू x, सो px प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1। एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन, आपको और क्या चाहिए, px माइनस 1 विच इज नथिंग बट x माइनस 1, राइट। नाउ अगेन इसको आप सपोज कर दो इक्वेशन नंबर 2, राइट। नाउ वी जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tx, x को भी ट्रांसफॉर्म करते हैं, और आपको पता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव टू राइट एज ए सम ऑफ px माइनस 1 एंड px प्लस 1। तो दोनों को जब ऐड करेंगे हियर x प्लस 1 एंड प्लस x माइनस 1, सो फाइनली यू विल गेट व्हाट, 1 विल बी कैंसिल्ड आउट, यू विल गेट 2x। अगेन वी हैव टू राइट दिस 2x एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देयर बेसिस, क्योंकि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो कहां आ रहा है, p3 में। सो नाउ यू जस्ट राइट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देयर बेसिस। सो व्हाट विल हैपन, आपको लिखना पड़ेगा 0 into 1, क्योंकि 1 कांस्टेंट कोई टर्म नहीं आया, 2x आया, तो 2 into x, थर्ड बेसिस क्या है x स्क्वायर, सो 0 into x स्क्वायर, एंड द फोर्थ बेसिस इज x क्यूब, दैट इज 0 into x क्यूब। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, राइट। सो वी हैव ट्रांसफॉर्म 1 and x. Now in the similar way, once you transform this x square, थर्ड बेसिस देखिए क्या है x स्क्वायर, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूं, क्या होगा इसका, देखिए अगर आप x स्क्वायर रखते हैं px की जगह, you just write px as x square, then you have to write summation of px plus 1, x plus 1 करेंगे क्या हो जाएगा, x plus 1 का होल स्क्वायर, एंड प्लस देखिए इक्वेशन नंबर 1 से बस डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, px की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, x स्क्वायर, सिंस इन द राइट हैंड साइड इट इज px प्लस 1, सो आई जस्ट राइट x प्लस 1 होल स्क्वायर। नाउ दिस px माइनस 1, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो नाउ फाइनली यू जस्ट ओपन इट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, एंड अगेन दिस ओपन x माइनस 1 होल स्क्वायर, सो x स्क्वायर प्लस y square plus 2ab, so 2x. So finally 2x will be cancelled out, you will get what, 4x square, right, 2 and plus 2, x square and x square, it is 2x square and plus this will be 2, right। देखिए यहां से 2x और 2x कैंसिल हो गया, x square it is 2x square, right, and plus 1 plus 1 it is basically
what 2. So again you have to write as a linear combination of their basis. इसको भी linear combination of basis लिखे तो क्या हो जाएगा 0. देखिए यहाँ पे 2 है तो आपको ये लिखना पड़ेगा क्या, यहाँ पे आपको कांस्टेंट देना पड़ेगा 1 into 2 प्लस, देखिए बेसिस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देयर बेसिस लिख रहे हैं, यहां कर सकते हैं 0 into x प्लस 2x स्क्वायर एंड प्लस 0x क्यूब, राइट. सो दिस इज अगेन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देयर बेसिस, इक्वेशन नंबर 4. एंड फाइनली वी हैव द लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज x क्यूब, राइट. सो वंस यू मेक इट px इज इक्वल टू, अगर आप क्या लेते हैं x क्यूब लेते हैं, सो व्हाट यू विल गेट, x क्यूब करिए तो किसका क्यूब हो जाएगा x प्लस 1 का होल क्यूब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. देखिए यहां आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी दिया हुआ था, उसी ट्रांसफॉर्मेशन से बस हमें क्या करना था, बेसिस की वैल्यू पुट करनी थी. सो x माइनस 1 होल क्यूब, यही तो होगा पी एक्स प्लस 1 की वैल्यू x प्लस 1 का होल क्यूब, सिंस वी आर टेकिंग पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब. सो पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल क्यूब, और जब पी एक्स माइनस 1 क्यूब लिखेंगे तो x माइनस 1 का होल क्यूब. सो यू जस्ट ओपन इट एंड एड दिस, सो यू विल फाइनली गेट 2x क्यूब, राइट, एंड प्लस 6x. you just open it and simplify, you will get this value a क्यूब प्लस बी क्यूब के a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब से ओपन कर दीजिए, you will get this result. now again you write as a linear combination of their basis. तो देखिए कांस्टेंट टर्म तो कोई आया नहीं है, 0 into 1 प्लस 6 आया है तो 6 into x प्लस x स्क्वायर के साथ 2x क्यूब एंड द लास्ट वन इज, देखिए यहाँ पे x स्क्वायर वाला टर्म भी लिखना है तो पहले x स्क्वायर वाला लिखिए, 0x स्क्वायर एंड प्लस 2x क्यूब, राइट. सो वी हैव मेंशन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देयर बेसिस. देखिए हमने क्या किया, सिंपली ट्रांसफॉर्म किया एंड वी जस्ट पुट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देयर बेसिस. अब वो ट्री मैट्रिक्स आप लिख सकते हैं, वो टी मैट्रिक्स क्या है, देखिए वेरी इजी. सो नाउ वी राइट हियर द टी मैट्रिक्स, राइट, द टी मैट्रिक्स. वो मैट्रिक्स क्या आपके पास बना, देखिए T इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस, यही तो हमें बनाना था T. सो देखिए यहां पे आपको पता ही है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हम क्या करेंगे, कॉलम वेक्टर के फॉर्म में इसे लिखेंगे 2 0 0 एंड 0. सो इट विल बी 2 0 0 and 0, right. now the second basis जो भी आपने ट्रांसफॉर्म किया x को, so 0 2 0 and 0. so finally we get 0 2 0 and 0. now the third transformation x square which is basically 2 0 2 and 0. देखिए हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देयर बेसिस किया. सो फाइनली वी गेट व्हाट, 2 0 2 0 2 and 0 and the last one is you can see here 0 6 0 and 2. so the last one is 0 6 0 and 2. अब अगर आप ध्यान से देखें ऑप्शंस पे चलते हैं. फर्स्ट इट आस्क अबाउट द डिटर्मिनेंट ऑफ t इज 0. आपको पता है दिस इज बेसिकली द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बहुत क्लियर है, बहुत क्लियरली दिख भी रहा है, इट इज नथिंग बट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. देखिए डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट 0 हैं, राइट, इट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. फॉर व्हाट अबाउट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट इज 2, राइट. अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट का आइगन वैल्यूज क्या होता है, देखिए जितने भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं, राइट. सो ऑन दिस बेसिस, और आपको पता है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, मल्टीपल ऑफ देयर आइगन वैल्यूज. सो इट इज बेसिकली व्हाट, नॉन जीरो. डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा इसका, डिटर्मिनेंट देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ टी विच इज यहाँ पे कह रहा है 0, जबकि यहाँ क्या रहा है, नॉन जीरो. 2 into 2 into 2 into 2, right. Simply we can calculate the determinant of a upper triangular matrix. So this option is basically wrong, right. So this is a very easy things to find
द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी पॉलिनोमियल। हमने यहां पे पॉलिनोमियल निकाला और उस बेसिस पे बता दिया। अब देखिए सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है t माइनस 2i, ये बेसिकली यहां पे आप नोट कर लीजिएगा, आई थिंक दिस इज स्क्वायर, राइट। सो t माइनस 2i होल स्क्वायर इज जीरो, बट t माइनस 2i क्यूब इज नॉन जीरो। अब देखिए सबसे बड़ी सिंपल प्रॉपर्टी है, ये बिना इस ऑप्शन के भी आप कर सकते हैं, इसको बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक। बिना किसी अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, नो नीड टू गो फॉर द सेकेंड ऑप्शन इज ऑटोमेटिकली रॉन्ग। ये बताइए अगर t माइनस 2i होल स्क्वायर अगर जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, क्यूब भी जीरो होगा। देखिए कोई भी मैट्रिक्स अगर जीरो है, दिस मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स, राइट। सो वंस यू मल्टीप्लाई अगेन बाई एनी मैट्रिक्स यू विल गेट व्हाट, जीरो मैट्रिक्स। लेकिन कह रहा है यहाँ पे ए क्यूब, देखिए ए क्यूब क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए, और यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब ए माइनस 2i होल स्क्वायर, और यहाँ कह रहा है t माइनस 2i होल क्यूब। जब ये जीरो होगा तो ये भी जीरो होगा, बट वी कैन कैलकुलेट इट। नाउ सी यू जस्ट कैलकुलेट, पहले आप इसको ऐसे कर लीजिए 2 माइनस 2i। अब देखिए 2 माइनस 2i वो मैट्रिक्स क्या बनेगी, यू जस्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए डायगोनल एलिमेंट को। दिस इज वेरी सिंपल, यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्ट बाई द 2i, मतलब यहाँ पे 2i कर दीजिए, a माइनस 2i। सो फाइनली यू कैन सी 2 0 2 0 and 0 2 0 6, this is 0 0 2 0 and the last one is 0 0 0 2. So once you subtract by 2i, यहाँ से 2 से आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 एंड द लास्ट वन इज 0 0 0 2। सो देखिए 2i से हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, एंड फाइनली व्हाट यू विल गेट, देखिए डायगोनल एलिमेंट सब सब्सट्रैक्ट होकर जीरो हो जाएंगे। सो फाइनली वी गेट व्हाट, वी हैव दिस वैल्यू। दिस वैल्यू मीन्स डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो, सो 0 0 2 0 एंड दिस 0 0 0 6 एंड देन 0 0 2 0 एंड 0 0 0 0, ये भी देखिए जीरो हो जाएगा क्योंकि डायगोनल के सारे एलिमेंट सब्सट्रैक्ट हो गए। बहुत आसान है, अब आप जरा मल्टीप्लाई कर लीजिए। वंस यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, t माइनस 2i होल स्क्वायर, तो आप यहां पे जरा फाइंड आउट करिए t माइनस 2i होल स्क्वायर। सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट जीरो मैट्रिक्स। आप करके देख लीजिए, वंस यू मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम्स यू विल गेट जीरो। यस, अगर ये जीरो है तो इसका क्यूब भी जीरो होगा, लेकिन यहां कह रहा है क्यूब जीरो नहीं है। सो दिस ऑप्शन इज बेसिकली रॉन्ग ऑप्शन। देखिए t माइनस 2i, इसी मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट जीरो मैट्रिक्स, राइट। 4 क्रॉस 4 का जीरो मैट्रिक्स मिलेगा, यू कैन इजिली गेट दिस वैल्यू, राइट। इट इज बेसिकली स्ट्रिक्टली अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स विथ 2 नॉन जीरो। सो फाइनली वंस यू मल्टीप्लाई यू विल गेट जीरो, राइट। आपको पता है स्ट्रिक्टली अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज बेसिकली नील पोटेंट मैट्रिक्स। दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉपर्टी, सो बाय दैट प्रॉपर्टी यू कैन आल्सो से दैट, बट यस it's since its power is 2, you can multiply by 2 times, you can get easily this value 0. Also as I told you कि if a square is 0 then a cube is also 0, but it is given t minus 2i is non-zero, that is wrong option. Now the third option, t minus 2i whole cube is 0. Yes, it is 0, लेकिन कह रहा है t minus 2i whole square is non-zero. अभी हमने कैलकुलेट किया t minus 2i whole square is 0, right? So this option is also wrong option because it is given non-zero. Here in the option you can see t minus 2i whole square non-zero, जबकि आ क्या रहा है, जीरो आ रहा है. So this option is also discard. Now the last option कह रहा है 2 is an eigen value with multiplicity 4. अब देखो आप यहाँ पे this is basically the upper triangular matrix, और आप जानते हैं upper triangular matrix का जो diagonal element होता है that is the eigen values and its algebraic multiplicity is what? कितना है algebraic multiplicity, कितनी बार ये आया हुआ है? It is basically 4 times, right? It is basically 4 times. So it is correct. 2 is an eigen value with multiplicity 4. 4 times आया हुआ है. This option is only correct. So you can see here this question is from the part C, right? And it is asked in December 2018, but only one option is correct. Only fourth option is
correct. So you can very easily solve if the question is asked from the linear transformation. इतने बड़े सेंटेंस से देख के आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. You just try to convert their mathematical form or mathematical equation. You will get very easily the answer. हमने यहाँ पे क्या किया, जितने भी बेसिस थे we just transform the basis into the matrix form. and और देखिए कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपका रैंक और नल स्पेस से भी पूछ देता है, रैंक और नल स्पेस से. तो अगर ऐसे सेम टाइप के प्रॉब्लम आए, आगे मैं दिखाऊंगा CSIR के प्रॉब्लम आए भी हुए हैं नेक्स्ट फ्यू ईयर में, जून 2018 में भी आया है और उसके बाद कई ईयर्स में ऐसे प्रॉब्लम आए हैं जहां रेंज और नल स्पेस से रिलेटेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कोरिलेट करके प्रॉब्लम आया हुआ. सो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. I think hopefully this question is clear to you all. Now the same type as I discussed earlier कि देखिए यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया एंड विद द ट्रांसफॉर्मेशन दे जस्ट आस्क अबाउट द रेंज, नल स्पेस, नलिटी, रैंक, राइट. सो नाउ फर्स्ट यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, व्हाट इज द क्वेश्चन, एंड देन मूव ऑन द प्रॉब्लम पार्ट. नाउ let V be the vector space of all complex polynomial P with degree less than or equal to n. अब देखिए जो पॉलिनोमियल है Px उसकी डिग्री क्या कह रहा है, which maximum degree is basically n, right. Now T is the transformation which is from V to V be the map. कैसे है ट्रांसफॉर्मेशन या मैप, देखिए यहां पे मैप भी डिफाइन किया है. टी ऑफ पी एक्स विच इज नथिंग बट पी डैश वन. आपको बहुत केयरफुली ध्यान देना है. देखिए यहां पे क्या कह रहा है, पी डैश वन की बात कर रहा है, टी पी एक्स विच इज पी डैश वन. और देखिए यहां पे क्या करना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है. तो अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट वी जस्ट ट्रांसफॉर्म एंड गेट द मैट्रिक्स फॉर्म. अगर आपको मैट्रिक्स फॉर्म पता चल गया तो वहां से आपको नलिटी पता चल जाएगी या नल स्पेस पता चल जाएगा. इसी तरीके से रेंज स्पेस पता चल जाएगा, नल स्पेस और कर्नल दोनों एक ही चीज है. नल स्पेस आपको तुरंत पता चल जाएगा और उसके डायमेंशन आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं. ओनली योर ऑब्जेक्टिव इज टू कन्वर्ट इनटू द मैट्रिक्स फॉर्म. तो अभी मैंने आपको बताया मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं. फर्स्ट यू नीड द बेसिस, एंड इसका बेसिस देखिए क्या होगा, कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है, एट मोस्ट n. सो अगर इसके बेसिस लेंगे तो आपके देखिए ऐसे हो जाएगा बेसिस सेट, जैसे अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन किया, 1x x स्क्वायर गोज अप टू x रेज टू द पावर n, राइट, बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन द डिग्री इज लेस देन और इक्वल टू n. तो इसके बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, देखिए ऐसे x raised to the power 0, x raised to the power 1 up to n, right. now at most n दिया हुआ, डिग्री की बात कर रहा है, at least at most डिग्री n. अब देखिए यहां पे आप चाहें तो सेम प्रॉब्लम को टू सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल भी लेके चल सकते हैं, बट एज इट इज गिवन सो आई जस्ट ट्रांसफॉर्म द सेम थिंग. तो देखिए सबसे पहले आप ट्रांसफॉर्म किसको कहना है, पहला पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, आपके पास पहला पॉलिनोमियल जैसे बताया दिस इज ऑफ डिग्री 0, देखिए 1 है. सो 1 को ट्रांसफॉर्म करेंगे. अब देखिए आपने जो पॉलिनोमियल लिया है दिस इज px इज इक्वल टू यू हैव टेकन व्हाट 1. तो यहां पे देखिए ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव टू ट्रांसफॉर्म सच दैट पहले हमें उस पॉलिनोमियल का क्या निकालना है, डेरिवेटिव, एंड देन पुट x एज 1. पहले डेरिवेटिव निकालिए, 1 टाइम डेरिवेटिव करेंगे 1 का क्या होगा, px तो यही है 1, 0 आ जाएगा. सो 0 को अब क्या करना पड़ेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देयर बेसिस. तो देखिए बेसिस सेट तो यही है, तो क्या हो जाएगा, 0 को लिखेंगे 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब डॉट 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 प्लस 0x रेज टू द पावर n, राइट. नाउ दिस इज द फर्स्ट पॉलिनोमियल. नाउ यू जस्ट ट्रांसफॉर्म द सेकेंड वन. देखिए ऐसे ही आप कर सकते हैं सेकेंड वन, आप सेकेंड इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2, राइट. नाउ यू जस्ट पुट px इज इक्वल टू व्हाट, x, राइट. नाउ x को डेरिवेटिव निकालेंगे, x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा, राइट. और यहाँ पे x की जगह 1 पुट करना, लेकिन उसका देखिए यहाँ पे क्या करना, हमें सबसे पहले डेरिवेटिव निकालना है.
तो पी एक्स का यहाँ पे डेरिवेटिव निकालेंगे, इट विल बी 1, और एक्स की जगह 1 पुट करना था तो 1 ही आ गया, तो कोई मतलब नहीं है. नाउ वी अगेन राइट इन द सेम थिंग, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देयर बेसिस. एनी एलिमेंट ऑफ दैट सेट can be written as a linear combination of their basis, a linear combination of their n tuples basis. So this is equation number 3, right? Now again the next one is, we just put the, देखिए next one is, next polynomial आपको क्या पुट करना है, t of किसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है, x स्क्वायर का. देखिए यहाँ पे x स्क्वायर. सो फाइनली एक्स स्क्वायर को दो बार वन टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, यू विल गेट व्हाट 2x, और x की जगह 1 पुट करेंगे, सो फाइनली यू विल गेट व्हाट 2. सो अगेन इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखिए. देखिए यहाँ पे थर्ड में px की वैल्यू हमने क्या पुट किया, x स्क्वायर, और हमें क्या करना है p डैश 1. सो जैसे ही आप p डैश x निकालेंगे यू विल गेट 2x, और x की जगह क्या पुट करना है यहाँ पे 1. सो 1 पुट करेंगे यू विल गेट 2. सो अगेन यू जस्ट राइट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देयर बेसिस. सो 2 into 1 0x प्लस 0x स्क्वायर प्लस डॉट 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 0x रेज टू द पावर n. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. इन द सिमिलर वे अब देखिए यहाँ पे एक चीज कॉमन है, आपको एक और टर्म ले लेते हैं हम. नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इट्स tx क्यूब, राइट, tx क्यूब. सो यहां पे देखिए इसको एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या मिलेगा आपको, px इज बेसिकली नथिंग बट इन दिस केस व्हाट 3x स्क्वायर, और जैसे ही x की जगह 1 पुट करेंगे यू विल गेट 3. सो इसको भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देयर बेसिस लिखेंगे, क्या होगा 3 into 1 प्लस व्हाट 0 into x प्लस 0 into x स्क्वायर प्लस डॉट 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 0x रेज टू द पावर n. दिस इज इक्वेशन नंबर 5. सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व फ्रॉम दिस इक्वेशन, देखिए पहला टर्म सिर्फ आपका नॉन जीरो आ रहा है, अगर आप ध्यान दें, और वो किस सीक्वेंस में, पहला देखिए 0 आया, देन 1, देन 2, देन 3, रेस्ट ऑफ द टर्म्स आर 0. सो वंस यू राइट, इसी तरीके से n टर्म्स का भी आप लिख सकते हैं. सो फाइनली यू कैन राइट n टर्म्स का लिखेंगे x रेज टू द पावर n. सो यू विल गेट व्हाट n, राइट, n विच इज लीनियर कॉम्बिनेशन आप क्या हो जाएगा n into 1 प्लस 0 into x प्लस 0 into x स्क्वायर एंड प्लस डॉट 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 0x रेज टू द पावर n. दिस इज इक्वेशन नंबर 6. यू कैन सपोज इन द सिमिलर वे वी कैन प्रोसीड फॉर द इन बिटवीन टर्म्स. अब देखिए हमने मैट्रिक्स बना लिया, अब करना क्या है, यू जस्ट राइट द मैट्रिक्स एंड जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कर्नल एंड रेंज, विच इज वेरी इजी. तो चलिए सबसे पहले इसको पहला कॉलम वेक्टर के फॉर्म में लिखना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट को कॉलम वेक्टर के फॉर्म में, पहला इक्वेशन नंबर 2 को, तो देखिए 0 0 0 ऑल द टर्म्स विल बी व्हाट 0. सो इसको पहला कॉलम वेक्टर लिखेंगे 0 0 0 0 0 0 अप टू 0, राइट. नाउ सेकंड लिखिए 1 0 0 0 0, ओनली फर्स्ट टर्म इज नॉन जीरो, रेस्ट ऑफ द टर्म विल बी व्हाट 0. थर्ड टर्म देखिए 2 0 0 0 0, इसको भी कॉलम वेक्टर में लिखिए. सो 2 0 0 0 0 डॉट 0. इन द सिमिलर वे 3 0 0 0 0 0 एंड द लास्ट टर्म विल बी n of 0 0 0 0. So now you tell how many, what about the order of this matrix. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है. देखिए यहां कहां शुरू हो रहा है, बेसिस. देखिए बेसिस जैसे मैंने आपको बताया, बेसिस इज बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम x रेज टू द पावर 0 या 1 से स्टार्ट हुआ, 1x x स्क्वायर x क्यूब अप टू n. तो देखिए ये जो मैट्रिक्स फॉर्म हुआ है ये बेसिकली n प्लस 1 ऑर्डर का. देखिए 1 स्टार्ट हुआ, यहां से 0 से स्टार्ट हो रहा है, x रेज टू द पावर 0. सो इट्स ऑर्डर इज बेसिकली n प्लस 1, राइट. सो ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, n, आप ऐसे लिख लीजिए n प्लस 1 क्रॉस n प्लस 1. अब इसके कर्नल और रेंज के बारे में बताइए. देखिए रेंज क्या होता है, या रैंक, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस लिखा हुआ, डायमेंशन ऑफ कर्नल होता है. आपको पता है डायमेंशन ऑफ द रेंज दैट इज रैंक, और रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज. सो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने इसमें, देखिए सारे रोज जीरो हैं. कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, सब आपको पता है, n प्लस 1 रोज है, n प्लस 1 कॉलम्स भी है. लेकिन इसमें ये देखिए सिर्फ एक रो ऐसा है जो नॉन जीरो है, तो इसका रैंक कितना हो जाएगा,
रैंक ऑफ दिस टी, या इसी को आप बोल सकते हैं डायमेंशन ऑफ व्हाट, रेंज स्पेस। रेंज स्पेस का डायमेंशन कितना रैंक है, एक ही सिर्फ नॉन जीरो रोज आ रहा है, सो इट्स डायमेंशन इज बेसिकली 1, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। और रेंज का यहां पे लिखा है n+1 ऑप्शन नंबर 4 में, दिस इज रॉन्ग। इन द सिमिलर वे अब देखिए आपके पास टोटल डायमेंशन है n+1 और एक डायमेंशन, वन डायमेंशन क्या हो गया, रैंक, तो रेस्ट ऑफ द टर्म विल बी व्हाट, नलिटी। रैंक नलिटी थ्योरम से आप कर सकते हैं, नलिटी आर आप बोल सकते हैं कर्नल, डायमेंशन ऑफ कर्नल या कर्नल स्पेस का डायमेंशन क्या हुआ, n हो गया। n ऐसे रोज हैं, n नंबर ऑफ रोज विच मेक्स दिस नल, विच मेक्स इज नल। सो आप बोल सकते हैं यहां से कि द डायमेंशन ऑफ व्हाट, नल या नलिटी ऑफ टी आर डायमेंशन ऑफ व्हाट, नल स्पेस, नल स्पेस, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज बेसिकली n। सो ऑप्शन नंबर 1 and 2 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है डायमेंशन ऑफ कर्नल 1 है, ये गलत कह रहा है क्योंकि अपना कर्नल क्या आया, कर्नल या फिर नल स्पेस, दोनों एक ही चीजें बोली जाती हैं, नल स्पेस लिखिए या कर्नल KER लिखिए, दोनों एक ही चीज है। सो फर्स्ट 2 ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर दिस केस, राइट। सो देखिए प्रॉब्लम बहुत आसान है अगर आप उसको आसानी से लेके सॉल्व करेंगे, राइट। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि कैसे हमें प्रॉब्लम को हैंडल करना है, हाउ वी मेक द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यू विल गेट 100% द करेक्ट रिजल्ट, राइट। बट वही है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सो नाउ I just give the hint for this one and you will just try to solve these two problems, right। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम जून 2018 का है, जो अभी हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया उस बेसिस पे इन प्रॉब्लम्स को भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सी, लेट V बी द वेक्टर स्पेस ओवर C विथ डायमेंशन n। अब देखिए यहाँ पे फिर उसी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन है, T इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V to V, right, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विथ ओनली वन एज आइगन वैल्यूज। अभी मैंने एक प्रॉब्लम में आपको आइगन वैल्यूज करके दिखाया, तो आपको एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लेना है जिसके सारे आइगन वैल्यूज क्या हो 1 हो, और कितने ऑर्डर का, n ऑर्डर का आपको क्या करना है, वेक्टर स्पेस लेना है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इफ वी वांट टू सी द आइगन वैल्यू इज 1, तो सारे डायगोनल एलिमेंट पे क्या रखने पड़ेंगे, 1 रखना पड़ेगा, तभी इसके सारे कह रहे हैं ना कि द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विथ ओनली वन आइगन वैल्यू, केवल इसका एक ही आइगन, वन आइगन वैल्यू, ओनली वन एज आइगन वैल्यू, सिर्फ एक ही आइगन वैल्यू आ रहा है 1 1 1 1, राइट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अभी मैंने आपको हिंट दिया कैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे पावर करेंगे, राइट। सो यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस, बट यस आपको यह ध्यान रखना है कि अपर ट्रायंगुलर भी ले सकते हैं जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ले सकते हैं जिसके सारे आइगन वैल्यूज क्या होते हैं, 1 होते हैं। बट वन ऑफ द मेजर एंड इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको जब भी ऑप्शन को डिस्कार्ड करना है तो आप क्या करेंगे, हमेशा रॉन्ग ऑप्शन को, कभी भी अगर आई से करेक्ट हो जाता है इस काउंटर एग्जांपल से, यू डोंट पुट एज ए राइट आंसर, क्योंकि करेक्ट को कभी भी, काउंटर एग्जांपल को कभी भी हमें करेक्ट ऑप्शन पे नहीं लगाना है। ऑलवेज अगर काउंटर एग्जांपल से रॉन्ग हो रहा है तो ऑलवेज वी फॉलो द रॉन्ग ऑप्शन, राइट, वो उसको रॉन्ग कर देना है, बट आपको कभी भी ट्रू नहीं करना है, क्योंकि एक काउंटर एग्जांपल के लिए ट्रू हो सकता है, अगले के लिए गलत भी हो सकता है। सो इट इज बेटर इफ यू आर टेकिंग एनी काउंटर एग्जांपल देन ओनली यू डिस्कार्ड द ऑप्शन। नाउ सी, अब देखिए 2020 के क्वेश्चन में क्या, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप 2018-19 तक तो सॉल्व कर लेंगे, 20 के प्रॉब्लम में देखिए क्या कह रहा है। नाउ विद द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे हैव एड ऑन इन स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस, यानी CSIR के लास्ट चैप्टर का लीनियर अलजेब्रा का। तो देखिए अगर आपके चीजें वही पूछा हुआ है, किसी में ट्रेस निकालना, जो भी मैट्रिक्स बना, राइट, बट दे हैव इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, इनर प्रोडक्ट स्पेस। सो अगर आपके इनर प्रोडक्ट स्पेस के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यू कैन नॉट ड्रॉ द राइट
स्टेटमेंट। और इसी नाते मैं बार बार बोलता हूं कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हर टॉपिक से रिलेटेड क्लियर होने चाहिए। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, द लेवल ऑफ द CSIR इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, राइट? सो you have to command over all topics and also your basic is again must be cleared, right? so इसको आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 करके इसमें आया हुआ है, यानी पार्ट सी का क्वेश्चन है, बहुत क्लियर है, मैंने पहले ही बता दिया। और इस वाले क्वेश्चन को भी आप ट्राई करेंगे। इन अ नेक्स्ट फ्यू लेक्चर आई विल ट्राई टू प्रोवाइड द वीडियो फॉर द these two also, right? Apart from this, if you want to clear your basic to advance each and everything, you can join our full course or crash course. Anytime you can join, right? Anytime you can join. All these 10 papers are available, right? In which we will provide you recorded lecture, live discussion, notebooks, and also the test series. For the test series, you can download our app from the Google Play Store, Excellent Education.